और खबरें तफसील से। मिलिटेंटों ने अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोल पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार और 6 साल बच्चा जाँ बहक हो गए हैं। महलूकीन की शनाख्त वेस्ट बंगाल के रहने वाले 90 बटालियन सीआरपीएफ से मुंसलिक कांस्टेबल श्यामल कुमार दे और यारीपुरा कुलगाम के नेहान यासीन बट के तौर पर हुई है। तफसीलात के मुताबिक हमलावर मिलिटेंट स्कूटी पर सवार थे, जिन्होंने पादशाही बाग के नज़दीक ड्यूटी पर मामूर सीआरपीएफ एहलकारों पर फायरिंग की। वाक़े के फ़ौरन बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और हमलावर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। उधर साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी लीडरों ने बिजबिहाड़ा हमले की मजम्मत की। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए सीआरपीएफ जवान समेत नेहान की हलाकत पर भी अफसोस का इजहार किया। So this happened around 12:15 in the morning, and two people, they came on a scooty. They fired on the CRPF Jawan who was deployed here, and at that time there was a lot of movement of civilians on this route. So while they were fleeing from the spot, firing towards the forces, one civilian also got injured, and subsequently he succumbed to his injuries. Now we are here, we are investigating the incident, and further details will be shared with you. चवा अलर्तराल में कल शाम शुरू हुआ इनकाउंटर आज 16 घंटों के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। इस इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शनाख्त मोहम्मद कासिम शाह उर्फ जुगनू साकिना मेडुरा त्राल, बासित अहमद परे साकिना त्राल, हारिस मंजूर भट्ट साकिना कबिल शिकारगाह के बतौर हुई है। इस इनकाउंटर में एक 3 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस मकान में मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। इस दौरान दीगर मुतादिद मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इलाके में कल शाम से ही इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। आज इनकाउंटर के दौरान मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच शदीद झड़पें रुनुमा हुई। इस सिलसिले में कस्बा त्राल में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। फौज की एक सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर विजय महादेवन ने त्राल इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। अनंतनाग के खनावल सेक्टर हेडक्वार्टर में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय महादेवन ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान आम शहरियों की हिफाजत को मुमकिन बनाया गया, जबकि मिलिटेंटों ने सरेंडर की पेशकश को ठुकरा दिया। The intelligence for this was built up over a period of time, consequent to repeated inputs of terrorist excesses on the local population, harassment of the innocent civilians, and misguiding the local youth to join the terrorist ranks. We did make attempts to induce surrender of these terrorists. However, they refused and instead started firing indiscriminately on our troops. We immediately evacuated all the civilians safely from that area and provided them security. During this period, the terrorists made repeated attempts to break the cordon and escape. However, they were thwarted by own troops. We continued to lay cordon on this house where the terrorists were trapped all through this night, and during the night too, the terrorists attempted to make a number of attempts to escape, but the same were thwarted. Today morning, when the terrorists again tried to escape from this house, in the ensuing gunfight, they were neutralized by own troops. 3 bodies of the terrorists, along with warlike stores, were recovered and handed over to the Jammu and Kashmir police. ब्रिगेडियर विजय महादेवन ने कहा कि फौज बिजबिहाड़ा मिलिटेंट हमले में मारे गए कमसिन बच्चे की हलाकत की मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों में आम शहरियों की हलाकत यकीनी तौर पर एक बुज़दिलाना हरकत है। The terrorists carried out a barbaric, cold-blooded murder of a 6-year-old child at Bijbihara, where they started firing indiscriminately on a CRPF picket from hiding and thereafter fled. In their
indiscriminate firing. One poor innocent 6-year-old boy was killed. I condemn such attack and I appeal to the parents to insulate their innocent civilians from these negative influences of these terror tanzeems and prevent them from being misguided and going along the path of taking up arms. Our youth are the future of our country. डोडा में आज एक और सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने सभी लाशों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि बटूत रगी नाले के करीब बटूत किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर हुआ यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गोल से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नाले में गिर गई। लाशों को बरामद करने के बाद उन्हें PHC लाया गया, जहां पर फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करके अहल खाना को लाशें दी गईं। लोगों का कहना है कि बटूत किश्तवाड़ कौमी शाहराह खूनी शाहराह हो गई है। उन्होंने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनकी बैरिकेडिंग नहीं होती है। आपको बता दें, कल किश्तवाड़ में भी एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद दरिया चनाब में बह गए और अभी तक उनकी लाशें बरामद नहीं हुई। वहीं इससे पहले एक और सड़क हादसा भी पेश आया था जब एक टिप्पर ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया चनाब में गिर गया। इसमें सवार 7 अफराद की लाशें अभी तक बरामद नहीं की गई हैं। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़कों की बैरिकेडिंग की जाए ताकि आए दिन हो रहे हादसा से बचाया जा सके। कॉल वगैरह आई तो हम यहाँ पहुँच गए सारे के सारे यहाँ पे, मतलब 15 मिनट तो 15-20 मिनट नीचे पहुँचने में लगे। जो ही हम नीचे पहुँचे तो वहाँ पे लगभग 3 बच्चे थे और एक मर्द और एक ड्राइवर और एक औरत थी। तो उनको देखा कि 5 के 5 वो बेचारे गुजर चुके थे, 5 के 5 बंदे गुजर चुके थे। तो उसके बाद ऊपर चढ़ाने में 1 घंटा लग गया इनको ऊपर चढ़ाने में। आप भाई आप देख ही रहे हो, पूरा हाईवे है बटोत किश्तवाड़ जो हाईवे, इसको शर्म आती है हाईवे कहने में भी। ये एक खूनी रास्ता है, आए दिन यहाँ पे हादसा होते रहते हैं। आपने देखा ये तो यहाँ पे हादसा हुआ, ये रगी नाला इसके लिए फेमस है हादसा के लिए। और यहाँ आज तक यहाँ का रिकॉर्ड है कि आज तक एक भी बंदा यहाँ रेस्क्यू करके इंजर्ड पर्सन हमने नहीं निकाला। जब भी निकला है डेड बॉडी ही निकली। ये थोड़ा सा अगर आप वहाँ देखेंगे, अगर आगे जाकर ये चनाब में जाते तो कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। ये हादसा रोड का हाल है। जहाँ भी रिस्की एरिया है वहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है। हमने आए दिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि आप बैरिकेडिंग यहाँ पे करो और स्ट्रांग बैरिकेडिंग कीजिए। कल भी हादसा हुआ हमारे पाडर में, अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। हफ्ता पहले भी वहाँ पे हादसा हुआ था, उनकी भी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। ये भी अगर थोड़ा सा आधे 2 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो इनकी भी शायद डेड बॉडी नहीं मिलती, ये भी सीधा चनाब में चले। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज भी 200 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। इनमें 3 फौजी जवान और 8 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। आज जो नए मामले सामने आए हैं इनमें से 156 वादी कश्मीर से हैं, जबकि 58 अफराद का ताल्लुक जम्मू डिवीज़न से है। जम्मू कश्मीर में इस वबाई बीमारी की वजह से 90 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 6700 से ज़ायद अफराद इसके मरीज़ बन गए हैं। वहीं अभी तक इस बीमारी से करीब 4000 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। आज जो 8 हामिला खवातीन का टेस्ट मुस्बत पाया गया था, ये सभी ज़िला उधमपुर के अस्पताल में दाखिल हैं। वहीं 3 फौजी एहलकार छुट्टी ख़त्म करके ड्यूटी पर आए थे और इनका भी टेस्ट मुस्बत पाया गया। कोविड-19 के तनाजुर में तिब्बी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अब ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से रज़ाकार अफराद को फ़र्स्ट एड की खुसूसी तरबियत फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। इस सिलसिले में आज DC पुलवामा डॉक्टर राघुल आंगर की निगरानी में तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम के तहत ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाकार नौजवानों के अलावा कॉलेजों के NSS से वाबस्ता तलबा को तरबियत फराहम की जा रही है। इन रज़ाकार अफराद को हादसात और नागहानी आफत में तिब्बी सहूलियात फराहम करने की तरबियत दी जा रही है। DC ने कहा कि कोरोना वायरस के सबब महकमे सेहत का काम काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए अब रज़ाकार अफराद को फ़र्स्ट एड की तरबियत फराहम की जा रही है। आप जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो चल रहा है और केसेस में भी स्पाइक आ रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर में वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो NGOs हों, रेड क्रॉस से वाबस्ता हों या डिफरेंट जो वो कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हों या इंडिविजुअल्स हों, उनको हम लोग एक फ़र्स्ट एड आज ट्रेनिंग, ट्राई-एजिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में हम लोग अपने हेल्थ सेक्टर वॉलंटियर्स का भी बखूबी हम इस्तेमाल कर सकें और उनकी सर्विसेज भी ले सकें।
कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान में फंसे 204 जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की वापसी हुई है। वाघा बॉर्डर से होकर ये लोग लखनपुर पहुंच गए। इनमें से बेशतर लोग वादी कश्मीर के हैं। वापस आए अफराद में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान घूमने गए थे और साथ ही कुछ तलबा भी हैं। दोनों मुल्कों की सरकारों की वजह से ये लोग वापस लौट आए हैं। डीसी कठवा ने न्यूज़ 18 को बताया कि अब तक 204 अफराद को लखनपुर पहुंच गए हैं और जल्द ही और भी लोग यहाँ लाए जाएंगे। पाकिस्तान से जब हम आए तो उन्होंने भी ये गाड़ी का इंतज़ाम फ्री दिया, और जब हम यहाँ रात के 1 बजे हम वहाँ से निकले और 6:30 बजे हम वाघा बॉर्डर पर पहुँचे, तो उसके बाद वहाँ कुछ कागजात उधर से भी जमा करने थे, इधर से भी जमा किए। या ये वाघा बॉर्डर पर हमारी इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं कहता हूँ बेहद अनथक उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनको। शुक्रिया, थैंक यू। हम जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में क्वारंटीन करेंगे। किस तरह पालन करेंगे आप? वो वही जानते हैं, जो रूल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल होगा उसी हिसाब से क्वारंटीन करने चाहिए, वो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे बाकी लोगों को? जी, मैं कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान एहतियाती बरतें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरी रखें, आपस में कम से कम 3 फीट 4 फीट का दूरी रखें। देखिए, कल 204 लोगों को हमने रिसीव किया लखनपुर में। ये 10 टोटल व्हीकल्स में आए हैं, 8 बिग बसेस थी और 2 LMVs थी। ये लोग यहाँ पर जैसे ही लखनपुर में पहुँचे, हमने सबसे पहले इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई। उसके बाद इनका डिस्पैच बनाया और रिफ्रेशमेंट इनको दिया, जिसमें जूस, बनाना और वो वाटर बॉटल्स ये वगैरह इनको दिया। और इनका हमने देर रात जो डिनर का इंतज़ाम किया था वो सांबा वालों ने किया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे और उनको हमने पहले ही उनके साथ टाइप किया था। डिनर का इंतज़ाम सांबा वालों ने किया। अभी आज भी 200 लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 200 लोग और आएंगे वाघा बॉर्डर से होते हुए यहाँ लखनपुर में। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में वो किसी को एग्जम्पशन नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रहेंगे, सैम्पलिंग करके जो टेस्ट नेगेटिव होता जाएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंटेलिजेंस जराए ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पुलवामा की तर्ज पर हमले की तरबियत फराहम कर रहा है। कश्मीर में मकामी सतह पर मुज़ाहमत का एहसास दिलाने की साजिश बताई जा रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसा तासुर पैदा करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी हाई कमीशन कश्मीरी नौजवानों को वीज़ा दे रहा है, एक रिपोर्ट है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 2017 से जम्मू कश्मीर के 399 नौजवानों को वीज़ा जारी किया है। इनमें से 218 कश्मीरी नौजवानों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।